Hello dear class 5, how are you all? Okay, my name is Ms. Anzla Arshad and I'm your English teacher. So today we are going to continue our previous lecture. हम लोग unit number 2 पे थे, so let's start with that. So dear students, you know that the name of unit number 2 is 5 bells, and previously we were doing the book exercise, and we have done the translation, words meaning, words sentences and question answers. So today we are going to do book exercise, and majorly we are going to focus on page number 28 and 29. It consists of grammatical concepts and some question answers and true false activities, so you just have to go through them. Okay dear students, so just look at this slide. I have mentioned that you have to do question number 4 on both, and rest of the questions 1 to 3 and 5 have been done by you on your notebooks. I just told you that you have to do this comprehension on your notebooks. So true false की activity आपने book पे करनी है, ठीक है? So the question is, here are some statements about the story. As you have read the story of David's family, in which the major focus was on Ryan's bicycle. जिसकी बाईसाइकिल की जो बेल होती है, it was not working well, so वो बहुत परेशान होता है. So his family was very much worried about his condition, and they were doing their efforts to bring a new bell for him. So सारे उसकी दुकान पे जाकर तो उसके लिए बेल खरीदते हैं, but at the end Ryan just bought his own bell for himself, और क्योंकि उसे पता नहीं होता कि बाकी सारे members भी उसके लिए गिफ्ट लाए हैं. So unknowingly he just threw the last gift of his sister in the dustbin, and he just brought his own new bell. So you have to keep the story in your mind, and after reading these statements you have to mark either the statement is true according to you or not. Okay, so the sales assistant did not seem to be familiar with his customers. जो सेल्स असिस्टेंट था, जो सेल्स पार्टनर था, क्या उसे पता था कि ये रयान की फैमिली है और ये डेविड फैमिली है और ये रयान के लिए आए हैं? नहीं पता था ना. तो इट इज़ ट्रू, उसे नहीं पता था. ओके, so part B, the whole mix-up was mainly due to the fact that each of them wanted their gift to be a secret. क्या ये बात सच है कि सारे एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने गिफ्ट को सीक्रेट रखना चाहते थे? डेफिनेटली, क्योंकि उसके फादर भी नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि वो रयान के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, और सीक्रेटली वो हर कोई जा रहा था उसी शॉप पे और रयान के लिए बेल लेके आ रहा था. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. आफ्टर दैट पार्ट सी, रयान नोटिस्ड दैट एवरीवन एट होम वाज काम एंड क्वाइट. क्या रयान ने ये नोटिस किया कि घर में सारे बहुत खामोशी के साथ बैठे हुए हैं? नो, घर में तो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी. कोई अंदर जा रहा था, कोई बाहर आ रहा था, कोई बाहर आ रहा था, कोई अंदर जा रहा था. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज द स्टोर ओनर हु प्रॉफिटेड द मोस्ट. क्या आपके हिसाब से स्टोरी के और डे के एंड में हम लोगों ने ये बात नोट की कि सबसे ज़्यादा अर्निंग और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसने कमाया था वो शॉपकीपर था? तो इसका आंसर तो आप खुद लिखेंगे, ठीक है. यू जस्ट हैव टू यूज़ योर ओन माइंड कि आपके हवाले से आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है, एंजॉय इट. Okay, now moving ahead, learn to read number 2. There is an activity of learn to read number 2. You have to do it on your notebook. ठीक है, ये भी it is a kind of comprehension. ये भी question answers हैं और ये बहुत interesting है. So there are 3 questions and you have to answer them. I will just give you some clues as I just did before, and you have to mark your answers and write your answers on your notebook and in your own perspective, in your own wording. Okay, so the first question is, do you think Ryan will ever find out the truth about the bells? क्या आपको लगता है कि रयान को कभी पता चल सकेगा कि एक्चुअली में हकीकत क्या थी, उसको जो बेल्स गिफ्ट हो रही थी और उसके बारे में कभी वो जान सकेगा? So question number 2 is, what do you think he will do when he does find out? आपके हिसाब से वो क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि हर किसी ने उसको बेल गिफ्ट की थी, बट ही जस्ट डिडंट बॉदर दैट, और उसने लास्ट जो बेल थी वो भी डस्टबिन में फेंक दी जो कि प्रॉफिटर ने गिफ्ट की थी. तो जब उसे पता लगेगा तो हाउ विल ही फील, उसे कैसा फील होगा? ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस? आपने डेविड फैमिली के बारे में स्टोरी पढ़ी है, 5 बेल्स की स्टोरी पढ़ी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एंड व्हाट आर योर फीलिंग्स आफ्टर रीडिंग इट?
और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी कोई इमोशंस और फीलिंग्स और थिंकिंग कुछ चेंज हुई हैं इसको पढ़ने के बाद? मेरी तो हुई हैं. आई विल जस्ट share my perspective with you after when you will just give the answers of these questions. I will share my perspective with you because I just really enjoyed this while reading it and by answering the questions with you. Okay my dear students, I just told you about the 3 questions. ठीक है, आप learn to read number 2 की activity है. अब उन क्वेश्चंस को आपने जिस तरह आंसर करना है उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ी से हिंट्स लिखते हैं. ठीक है, आप सबका आंसर डेफिनेटली डिफरेंट होगा, लेकिन आपको थोड़े बहुत हिंट्स मिलने चाहिए कि आपने आंसर अपना किस तरीके से लेना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वाज, डू यू थिंक रयान विल एवर फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट द बेल्स? क्या आपको लगता है कि रयान को कभी सच के बारे में पता चलेगा जो कि उसके पेरेंट्स और उसकी बहनें कर रही थी, उसके लिए गिफ्ट ले रही थी? तो आपने आंसर एग्री और एग्री नॉट में लिखना है. आइदर यू आर एग्री और नॉट. ठीक है, एंड आई थिंक दैट ही थिंक्स दैट ही बाय द बेल बाय हिज ओन. ठीक है, और आपने इसको थोड़ा सा मोल्ड करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि उसको, मेरा ये ख्याल कि उसको कभी पता चल सकेगा. हाँ, हो सकता है व्हेन एवर दे जस्ट डिस्कस अबाउट दिस इन द फ्यूचर लाइफ और अ लाइफ अहेड, देन दे विल जस्ट हो सकता है उनमें से कोई एक मेंबर बता दे कि आई वाज द वन हु जस्ट बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू. लेकिन अभी तक तो आई डोंट थिंक सो कि ही विल जस्ट गेट टू नो अबाउट दिस. ओके, so question number 2 is that what do you think that he will do when he does find out? वो क्या करेगा जब उसे पता चलेगा? I think that he will get very astonished, surprised, and he also gets very confused or feel bad that he threw that last bell of Pepita which he gifted him. So I think उसकी feelings थोड़ी इस तरह की होंगी. ठीक है, what do you think that you have to write it in your notebook? Okay, question number 3 is, what kind of story is this? What are your feelings after reading it? आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपकी feelings क्या है इसको पढ़ने के बाद? I think the story was very much interesting. It has a very good moral lesson, and I think that I feel very responsible for my family because हमारे जो siblings हैं और जो हमारे parents हैं, अगर हमारे लिए इतने ज़्यादा concern हैं, इतने loving हैं, इतने supportive हैं, तो why shouldn't I? हमें भी बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में कंसर्न होना चाहिए. ठीक है ना? तो यू जस्ट हैव टू राइट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट. ओके, बेस्ट ऑफ लक. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट कम टू पेज नंबर 28 and learn words as an other activity. So what is the demand of this activity? Let's read the statement. A tricycle means 3 पहियों वाली साइकिल, is a cycle with 3 wheels, just as a bicycle is a cycle with 2 wheels. A tricycle वो साइकिल होती है जिसके 3 पहिए होते हैं और bicycle जिसके 2 पहिए होते हैं. Tri means 3, bi means 2. Have you heard of a unicycle? क्या आपने यूनिसाइकिल सुना जिसका एक पहिया होता है? यूनि का मतलब होता है 1. Tri means 3, bi means 2, uni means 1. क्या आपने कभी यूनिसाइकिल देखी है? मैंने तो कभी नहीं देखी. It is a cycle with 1 wheel and was used in the olden days. अच्छा, जब साइंस बहुत ज़्यादा इनोवेशन में नहीं थी, या जब आप कह लें कि बहुत ओल्ड एजेस किसे कह सकते हैं कि 90s and 80s की बात हो रही है, कि जब बाईसाइकिल भी ऐसा लगता था कि जिस तरह हमारे लिए आज गाड़ी है, उनके लिए, पुराने लोगों के लिए बाईसाइकिल वॉज अ लाइक कार. ठीक है, जिसके पास बाईसाइकिल या ट्राईसाइकिल होती थी वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सनैलिटीज माने जाते थे. तो यूनिसाइकिल जो थी वो भी बहुत ओल्डन एजेस में और ओल्डन डेज में यूज़ होते थे, जैसे हमारे दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान के एजेस में. तो हो सकता है यूनिसाइकिल भी कोई चीज़ हो. तो द यूनि इज़ अ वर्ड. यूनिसाइकिल मीन्स 1, बाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3. ठीक है, आपको इस पैराग्राफ में बता दिए कि ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल और यूनिसाइकिल में क्या फ़र्क है. ठीक है, नाउ लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स. एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8 वर्ड्स हैं. नाउ विद दीज 8 वर्ड्स यू हैव टू राइट यूनी, बाय एंड ट्राई. जिसके साथ यूनी, बाय और ट्राई सूटेबल होगा, हमने उसको इन ब्लैंक्स के अंदर सेट करना है. द क्लूज इन द कॉलम बिलो द बॉक्स विल गाइड यू. अब जो क्लूज आपको दिए हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, ये हमारी गाइडलाइन में हेल्प करेंगे. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब फर्स्ट वन हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है.
डैश जीन्स और टी शर्ट्स worn बाय men एंड वुमेन। तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है यूनिसेक्स। बेटा इसका मतलब है कि जो जीन्स और टी शर्ट आजकल लड़कियां भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं और लड़के भी पहनते हैं, ऐसे ही है। तो जब दोनों जेंडर्स एक ही दफ़ा एक ही चीज़ पहन रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिसेक्स, मतलब टू ऑपोजिट जेंडर्स आर वेयरिंग द सेम ड्रेस, ठीक है। सो इट विल बी नॉन एज यूनिसेक्स। तो अब बाकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, these will be done by you and I will just guide you that how you have to do it. Okay dear students, I just added some pictures for you, जिसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा about unicycle, bicycle and tricycle. As I told you, uni means one, bi means two, tri means three, ठीक है। तो आप ये इस images देख के आपको मज़ीद clarification हो जाएगी that how you have to use these three words with other kind of forms. Okay my dear students, so let's look at this slide. We just have to do the exercise of this activity. Here are at one side I have just printed a exercise, and on the next slide I just write the answers. Okay, so while reading the statements, you just have to think by your own that which word you have to write here. So the first part B is that dash magazine published twice a year. अब एक मैगजीन जो है वो एक साल में 2 दफ़ा पब्लिश हो रहा है। ट्वाइस अ ईयर मतलब 2 टाइम्स। तो ट्वाइस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बाय, ठीक है। और ईयरली के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एनुअल। तो यू जस्ट हैव टू राइट बाय एनुअल। ट्वाइस अ ईयर को हम लोग लिखेंगे बाय एनुअल, ओके। पार्ट सी, डैश स्पेशल क्लोथ्स worn by all members of a group. As you know that you all went to the school, go to the school and you all just wear the same clothes. आप लोग सारे एक ही कपड़े पहनते हो स्कूल जब जाते हो, ठीक है। So what you have to write, you wear uniform, ठीक है। जब ढेर सारे बच्चे और ढेर सारे ग्रुप के बच्चे एक जैसे कपड़े पहने तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म, ठीक है। You have to write uniform. Part D, pair of spectacles with each lens made up of 2 parts. स्पेक्टेकल्स का वर्ड बेटा हम लोग यूज़ करते हैं लेंसेज एंड ग्लासेस के लिए, ठीक है, जो हम वेयर करते हैं अपने आई के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर ऑफ स्पेक्टेकल। पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है। लेंस मेड अप ऑफ 2 पार्ट। अब यहाँ पे भी 2 आया है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बाय का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन बाय के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? बाय फॉर्म? नहीं, ये तो सूटेबल नहीं है। बाय फोकल। फोकल जो होता है ना वो हम लेंसेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फोकल। Part E, a dash white horse with a single horn on its head. Single means one. तो one के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Try यूज़ करते हैं? नहीं तो by यूज़ करते हैं? No. हम single के लिए क्या यूज़ करते हैं? uni, one. Uni means one. Single means one. तो इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। A white horse with a single horn on its head. कौन सा ऐसा घोड़ा है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसके सर पे सिर्फ एक सींग है? Have you just heard about unicorn? Yes, यहाँ पे हम unicorn लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? unicorn. So part F, a dash living thing with only one cell. Again one means uni, ठीक है। uni का वर्ड हम यूज़ करेंगे and living things के लिए हम cellular का वर्ड यूज़ करेंगे because we are made up of a lot of cells, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? unicellular। लेकिन यहाँ पे पूछा है लिविंग थिंग्स विद ओनली वन सेल, वो लिविंग थिंग जिनके अंदर सिर्फ वन सेल होता है, जिस तरह बैक्टीरिया, जिस तरह वायरस, उसके अंदर वन सेल होते हैं ना। तो वी जस्ट हैव टू राइट यूनिसेलुलर, ओके। वही हम जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स बर्ड हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, ओके। पार्ट जी, अ सपोर्ट विथ 3 legs फॉर अ कैमरा और टेलीस्कोप। 3 legs। 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाय यूज़ करते हैं? नो। 3 के लिए हम ट्राई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्या यूज़ कर सकते हैं हम? यहाँ पे वर्ड क्या लिखें जो कैमरे और टेलीस्कोप के लिए जो 3 legs होती हैं जिसके ज़रिए कैमरा और टेलीस्कोप सपोर्टेड होता है, क्या यूज़ करते हैं उसके लिए हम? ट्राईपोड्स। वी जस्ट हैव टू राइट ट्राईपोड्स।
After that, a flat shape with 3 straight sides and 3 angles. Class 5, you are in class 5 and you all know about the shapes of which you read in math. ठीक है, सारी शेप्स के नाम आते हैं आपको, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? जिसकी 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं. तो डेफिनेटली अगर 3 का वर्ड यूज़ हुआ है तो हम लोग इसके लिए ट्राई यूज़ करेंगे. लेकिन ट्राई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एंगल. ठीक है, तो वी जस्ट हैव टू राइट ट्राइंगल. सो माय डियर लिटिल वंस, आई नो इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, बट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तभी क्लियर होंगे जब आपको यूनी, बाय और ट्राई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. आपको जब पता चल जाएगा कि यूनी, बाय और ट्राई हम लोगों ने किस किस के साथ और क्यों यूज़ करना है, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन अ वेरी इजी वे. ओके, सो गो थ्रू इट एट once and try to do it. Okay dear students, I hope you just enjoyed this lecture today. So you just have to do your work in a very good way. I will just let them check. Take care of yourself. Allah Hafiz.